आई एम शांतिनी और मैं हमारा शो नामकरण को प्रमोट करने चंडीगढ़ आई हूँ। एक हफ्ता हो गया नामकरण को स्टार प्लस पर आए हुए एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं एंड यू नो इट्स महेश भट्ट स्टोरी सो इट्स अ स्पेशल जर्नी नामकरण एंड मैं उस शो में नीला का किरदार निभा रही हूँ एंड शो में 5 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं। नीला इज़ वन ऑफ देम एंड शो का अगर मैं वन लाइन में बताऊँ तो इट्स नामकरण ऑफ ऑल दिस रिलेशनशिप्स, कैसे आपस में एक दूसरे के जो रिलेशनशिप्स है उसका धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ती रहेगी उनका नामकरण होते रहेगा। और ये छोटी सी जो बच्ची है अवनी, उसका ये जर्नी है और कैसे उसकी ज़िंदगी में एक एक करके जो उसके रिलेशनशिप्स रीडिफाइन होते जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट नामकरण इज़ ऑल अबाउट एंड आई एम प्लेइंग नीला इन द शो। सो इफ़ यू ऑल वांट टू आस्क, you all can ask me. Different to me. I mean, as Shantini, I'm not. I mean, yes, there are similarities, but overall, she's pretty different. She's on the top layer. She's very vivacious, lot of energy. बहुत स्पंकी है, बहुत फ्रॉथी है, बबली है. So लोगों को जैसे मेरा इंट्रोडक्शन सीन भी था, लोगों को लगा होगा अरे ये तो बहुत ही चुलबुली सी लड़की है, जो वो है, of course वो है. But that's just a superficial layer. Deep within, she's a very बहुत डेप्थ है उसमें. She doesn't have a mother of her own. Her mother passed away when she was a child. So just a father, you know. So it's a beautiful father-daughter relationship, and of course Ashish, who's my best friend. We've grown up together. So if you ask me, the similarities is I mean between Shantini and Neela, we are both very generous. Neela is the most generous character in this show. As the story progresses, you all will get to know that how generous and kind she is. So that's a major similarity. But in life, I am not that energetic as Neela is. She's like, it's very difficult to live up to her energy levels. So the reason I took up this role, to be very honest, I think, of course, Bhatt Saab, you know. So, you know, when it comes from Bhatt Saab, you can't really say no. And the experience of being involved with him has been so great, क्योंकि जब भी हम स्टोरी सेशंस उनके साथ करते हैं और ये उनके निजी ज़िंदगी के ऊपर यू नो इट्स बेस्ड ऑन इट, इट्स नॉट कम्प्लीटली बट इट्स ऑब्वियसली बेस्ड ऑन इट. सो जब हमारे स्टोरी सेशंस होते थे, वर्कशॉप्स होते थे, जब वो बताते थे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंसेस, या जब भी वो कैरेक्टर नरेट करते, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. So the best thing the Namkaran can do to all of us is like, you know, the association with Bhatt Saab. It's so much you take being with him, you know, so much of wisdom and so much, you know, it's words will fail me. I mean, I can't describe it in words. It's amazing. And having said that, it's again a reassociation with Star Plus. I've done a lot of shows on Star Plus, you know, so I obviously look for an opportunity to be reassociated with them. In the past also मैंने काफ़ी सारे shows किए हैं Star Plus के साथ. एंड पर्सनल लेवल पे मैं ये बोलूँगी कि पिछले कुछ सालों से जैसे रोल्स आई ऑलवेज ट्राई एंड सी दैट यू नो आई वेरिएट द काइंड ऑफ रोल्स दैट आई डू. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 साल से काफ़ी माइथोलॉजिकल शोज में कर रही थी. सो आई थिंक सम में लोगों को ये लगने लगा था दैट यू नो शी इज़ ओनली सूट कट आउट फॉर दैट. सो दिस रोल इज़ वेरी डिफरेंट. किसी ने सोचा नहीं होगा कि शांतिनी कैन डू दिस रोल, बिकॉज एक कहीं ना कहीं एक इमेज आई थिंक लोगों के दिमाग में आ गया था, शी इज़ दिस ग्लैमरस डीवा काइंड ऑफ अ रोल, एंड नीला इज़ जस्ट सो ऑपोजिट. शी इज़ द मोस्ट सिंपल कैरेक्टर in terms of look and behavior So I think that was very important for me, because I wanted to break that conception that, you know, Shantini can't do like a bubbly girl next door kind of a role. She can only pull off glamorous or mythological shows. So yeah. And in your entire career, which role did you find very challenging? It's like since 2002 you've been playing. No, 2006 in Bombay, but I started working before that. Yeah, that was 2006. Yes, 4 of them. 4 of them. So tell me, which was the challenge to See, I can't pick and choose, because हर role अपने में अपने खुद की challenges लाते हैं, and they're all very special. अभी जब मैंने career की शुरुआत की थी, obviously तब मैं सीख रही थी, तो पहले के जो shows हैं, they're very special to you because they're the beginning of your career. So I think it'll be unfair on my part to choose any role, because हर role से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है. But yes, physical level पे अगर आप मुझे challenging पूछो कि as a human being, which were the 2 shows which were very challenging? Again, coincidentally, both the shows have been with the Star Network. One is Mahabharat and the other was a reality show which I did live OK के लिए, Dare to Dance. So on physical level, they were very difficult. But
challenging. Every role is challenging. This role, नामकरण जिस शो के लिए मैं यहाँ आई हूँ, it's very challenging because इस शो के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं जो टिपिकल एक टीवी डेली सोप का एक पैटर्न हो गया है जो ऑडियंस देखते हैं जनरली सास बहू सागास, ये अभी जो एक सुपर नेचुरल का एक फ्लेयर है, so all the nags, nagins and all of that etc. So we're trying to break that mode. एक realism जो है, realistic story को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं. So it's very difficult to be real on TV, you know, with the makeup and the get-up, and it becomes a very TV soapy kind of a thing. So हम लोग बहुत जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि इसको as close to real रखें, if not real. So this show, of course, it has its own challenges to be real. It's very difficult to be real in this world. You can easily fake it, you know. So you're really trying hard to be real. हाँ बिल्कुल आते हैं हमारे तो मतलब शो शुरुआत से पहले वी हैड अ लॉट ऑफ स्टोरी मीटिंग्स एंड वर्कशॉप्स, और जब भी कोई इंपॉर्टेंट सीक्वेंस शूट करते हैं भट्ट साहब इज पर्सनली देयर. वो हमें उसके पहले इधर हम यू नो वी ऑल ऑफ अस सिट अक्रॉस द डायरेक्टर्स द एक्टर्स, वो हमें ब्रीफ करते हैं, यू नो गिव्स अस अ पेप, ही गिव्स अस पेप टॉक्स एंड बेसिकली ही गाइड्स अस कि कैसे. अभी एक्टिंग तो वो नहीं सिखाते, ही सेज दैट यू नो आई एम नॉट हियर टू टीच यू ऑल एक्टिंग. द रीजन यू ऑल हैव बीन हायर्ड टू डू दिस जॉब इज बिकॉज you all are people somewhere who've reached somewhere in your career, but उनका presence itself, you know, the kind of energy, उनकी जो energy level है, it's amazing. मैंने आज तक मेरी लाइफ में किसी को इतना energetic throughout round the clock रहते हुए नहीं देखा है. उनकी लाइफ की इतने सारी एक्सपीरियंसेस वो वापस से रिलिव कर रहे हैं. वो पहले भी कर चुके हैं इन जन्म एंड जख्म, बट ही सेज, यू नो, where जख्म ended is where नामकरण begins. सो बट इट्स नॉट ईजी कि आपकी ज़िंदगी में जो पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस है आप बार बार उन्हें दोहरा रहे हो, बट एवरी टाइम ही डज इट विद सो मच ऑफ सोल इन इट. सो इट्स इंस्पायरिंग, ही इंस्पायर्स अस लाइक हाउ, एंड जस्ट हिज शेयर प्रेजेंस मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस. अवनी है जो छोटी सी बच्ची है, जो रफली भट्ट साहब का ही रियल लाइफ, अगर भट्ट साहब ने ही अपने ऊपर बेस करके अवनी के रोल को एच आउट किया है, उसकी जो जर्नी है और उसके जर्नी में जो ये 4 कैरेक्टर्स है, एक तो ऑफकोर्स उसकी माँ आशा, उसके फादर आशीष, ग्रैंड मॉम दयावंती, एंड आई इवेंचुअली बिकम द स्टेप मॉम नीला. कैसे लाइफ में धीरे धीरे इन सभी रिश्तों का नए तरीके से नामकरण होता है अवनी के लिए. जो उसने सोचा था जिंदगी में कि उसके लिए जो विलन थे, कैसे वो उसके लिए धीरे धीरे चीज़ें बदलती जाती है, हाउ ऐसे ऐसे नामकरण होता है हर रिश्ते का, वेदर इट इज नीला आशीष, नीला दयावंती, दयावंती आशा, Dayavanti, Avni Ashish. So it's a namkaran of all the relationships that happen. That's why namkaran, and Avni's journey to find her own name in the society, an illegitimate child. उसकी जो जर्नी है और उसके जर्नी में कैसे कैसे एक लार्जर पिक्चर है, she finding her own name in the society, and simultaneously how she's redefining her. No, कि I think क्योंकि मैं टीवी में 11 साल से काम कर रही हूँ, एक एक्सपीरियंस का प्लस पॉइंट जो होता है, कभी कभी एक्सपीरियंस नेगेटिव एक पॉइंट भी लेके आती है, वो ये है कि आप बहुत प्री कंडीशनड टाइप हो जाते हो. एक ऐसा लगता है कि लूप में चल रहे हो, एक ऑटो एक फीड हो जाता है कि टीवी है, ऐसी एक्टिंग करनी है, रिएक्शन ये वो. सो यू नो द फर्स्ट थिंग भट्ट साहब ने जो हमें बोला कि जितना आप लोगों ने सीखा है उसको भूल जाओ, ऐसे कोशिश करो कि ट्राई एंड फाइंड योर सेल्फ अगेन. सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट कि यू नो अपने आप को कम्प्लीटली रिमोल्ड करना. यू नो कुछ भी करो, आप सीन करने जाते हो, एक्सपीरियंस आपका है तो एक इंस्टिंक्ट होता है कि अच्छा इस सीन को ऐसे करेंगे, फिर हमको बोला जाता है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे अप्रोच करो. टू कीप ऑन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शेड योर स्किन एंड लर्न समथिंग न्यू. सो दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड दैट इज़ वेरी स्पेशल. आई थिंक एज एक्टर्स अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं. यू आर रियली चैलेंज्ड इन द ट्रू सेंस. Physically, yeah, I mean, we put in a lot of long hours, so it is definitely challenging, but on an emotional level. And I'm saying this not because I'm a part of this show. This show, all of us, I can vouch for all the actors, we are putting our soul into it. You know, हम लोग शूट करते हैं, उसके बाद जाते हैं, हमारी स्टोरी मीटिंग्स होती है, we attend our workshops, हमें ऑफिस में बुलाया जाता है या हमें फ़ोन कॉल आता है, आपका ये सीन बहुत अच्छा हुआ, ये नहीं हुआ, ये ऐसा होना चाहिए था. So the process is it's very non-TV. So you know, it's just not an. I'm very happy and thankful आपने ये बोला, but मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी हकदार हूँ, because I'm very happy and blessed कि उन्होंने मुझे उनके साथ तुलना किया, बट मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी लायक या काबिल हूँ कि मेरी तुलना हो जाए उनसे. बट आई एम हैप्पी. एंड जैसे मैंने बोला कि भट्ट साहब बहुत इंस्पायर करते हैं हमें. यू नो
ही इज़ नॉट लाइक अ फिल्म मेकर जो आते हैं बस आपको आए हैं कि मैं महेश भट्ट हूँ, मैं आपको डायरेक्ट करने आया हूँ, आपको स्टोरी बताने आया हूँ। उनके साथ अगर आप बात भी करोगे 10 मिनट बैठ के जैसे बात करते सबसे पहले तो इन ऑ हो आप, अच्छा ही इज़ महेश भट्ट बट ही जस्ट बिकम्स यू एंड यू बिकम हिम। वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं एंड जस्ट उनकी बातें सुन के ही ऐसा आप इतने इंस्पायर हो जाते हो। इतनी रियल लाइफ उन्होंने इतना कुछ देखा अपनी खुद की ज़िंदगी में, और जब वो इंसिडेंट्स बताते हैं स्पेशली मेरे किरदार को लेके, जब वो अपने स्टेप मॉम के साथ उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे वो बताते थे, तो मतलब लिटरली मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे लगता था कि ये मुझे करना है, मतलब ये भगवान मैं कैसे करूँगी इस इमोशन वो इट्स कैसे लाओगे इतने रियल इमोशंस को एक्टिंग में भी। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग मतलब व्हाट भट्ट साहब डज टू अस। ये नामकरण का सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ मैं अपने पास लेके जाऊंगी, इट्स बीन द डेज दैट आई स्पेंट विद भट्ट साहब इज सो ओवरवेलमिंग। दिस भट्ट साहब एक लाइन बोलते हैं कि हम लोगों को इम्प्रेस नहीं करना चाहते, हम लोगों को छूना चाहते हैं। वी आर नेवर सेइंग वी आर डिफरेंट। हम ये नहीं बोल रहे कि हम डिफरेंट है, ये सेट है, ये है, लार्जर देन लाइफ कुछ बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी में रियल इमोशंस होते हैं हम उसी को डिपिक्ट करते हैं। आप कोई भी इमोशन उठा के देख लो, एक माँ बेटे का रिलेशन वो हम डिपिक्ट कर रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड्स का रिलेशन, लाइक आशीष एंड नीला हैव बीन चाइल्डहुड फ्रेंड्स। Eventually Neela kind of starts seeing him as a lover, eventually a husband and wife. That is there. Another perspective of a mother-son relationship is there, Avanti and Ashish. Unique relationship is of a stepmom and a stepchild, that is Avni and Neela. So we are never claiming कि हम बहुत कुछ different कर रहे हैं। हम ये claim कर रहे हैं we are only making an attempt, an honest attempt to touch people's life. And how do we touch lives? See, ornamentation and chakachaun तो आपको बहुत shows में मिलेंगे. We are trying to be as I'm saying, it's very difficult to be real. It's a struggle. हमारे sets पे बोलिए आप पेन के ऑफिस जो हमारे producers है गुरुदेव भल्ला एंड धवलगढ़ा, वो लोग सुबह से शाम एंड भट्ट साहब दे हैव अ राइटिंग टीम, वो सुबह से शाम वो लोग स्क्रिप्ट्स पे वर्क करते हैं बिकॉज that's the only way we can be real. We don't want to have a very TV kind of a scene. So we are not saying we are different. We are saying we are making an attempt to touch lives with our honest, attempts and real emotions. आपने अगर एपिसोड्स देखे भी होंगे, the best feedback we've got that we are very natural, real, the lighting, the look of the characters, the acting. So that's what we want, human emotions को जितना हम अपने खुद के दिल से या रूह से उसको पोर्ट्रे करें और जितना हम लोगों के दिल को छू पाए। हाय, आई एम शांतिनी और न्यूज़ टुडे लाइव के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। हमारा एक नया शो है नामकरण, स्टार प्लस पे रात 9 बजे। प्लीज़ उसे देखिए, ढेर सारा प्यार बरसाइए एंड यस, जस्ट कीप लविंग अस एंड कीप वॉचिंग अस।